السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں دوستو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پڑھانے جا رہی ہوں سی-ٹیٹ دسمبر 2024 میں جو آپ لوگوں کا ایگزام ہونے والا ہے، انہی سے ریلیٹڈ یہ سارے اہم کوشچن لے کر کے آئی ہوں، تو آپ لوگ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے دوستو یہ سارے کوشچن آپ لوگوں سے ہی ریلیٹڈ ہیں اور PYQ ہیں، پریویس ایئرس کوشچن آپ لوگوں کو اس لیے سالو کرایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند ہو اور ایک اندازہ مل سکے آپ لوگوں کو کہ یہ کوشچن پوچھے جا رہے ہیں اور اسی ٹاپک پہ پوچھے جا رہے ہیں، اسی ٹائپ کے پوچھے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے دوستو، جتنی محنت کیجیے گا شدت سے محنت کیجیے تاکہ سفلتا آپ لوگوں کو خود بخود ملے، اور ایگزام میں جائیے گا تو آپ لوگوں کو ایک اندازہ مل جائے گا کس طرح سے کس ٹائپ سے کوشچن پوچھے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کوشچن کیا کہہ رہا ہے، ہم انہیں دیکھیں گے۔ اس مشق میں ایک مختصر اقتباس میں چند لفظ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ طالب علم کو اپنے مطالعے کی بنیاد پر خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھتے ہیں۔ اس مشق کا مقصد طالب علم کی مندرجہ ذیل میں سے کس صلاحیت کا اندازہ کرنا ہے۔ یعنی ایک مشق، ایک مختصر اقتباس، ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، مختصر یعنی ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس میں ہم چند لفظ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ڈاٹ بچے کو خالی جگہ پر کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور مطالعے کی بنیاد پر ان لفظ کو لکھتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ٹیچر کس طرح سے انہیں پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایک صلاحیت دے رہے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں بچوں کا۔ تو دیکھیے نئے الفاظ کا استعمال، یا دیکھیے تلخیص کا تلفظ، یا لفظوں کا تلفظ، یا لفظوں کو سمجھنا۔ تو یہ جو ٹیچر ایک ڈاٹ دے کر کے سمجھا رہے ہیں ایک اقتباس میں، وہ سمجھانے کا تلفظ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لفظوں کو، اسی لیے ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کوشچن کیا کہہ رہا ہے، نیکسٹ کوشچن کہہ رہا ہے بات کا بتنگر بنانا کا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یا ہر وقت تانے دینا، یا زیادہ باتیں کرنا، یا چھوٹی سی بات پر لڑنا جھگڑنا۔ تو دیکھیے بات کا بتنگر بنانا کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر، جتنا ہم بڑھا چڑھا کر کہیں گے بات کا بتنگر ہی بنتا جائے گا، تو اسی لیے اے از اے کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کوشچن کیا کہہ رہا ہے، بامعنی تحریر کی غرض سے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کیا کریں؟ وہ پہلے کریون کے ذریعے لکھے دائروں اور دیگر بنیاد شکلوں کا خاکہ بنانے جیسی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی مہارتیں پیدا کریں۔ تو کریون کے ذریعے کون سی مہارتوں کو پیدا کریں گے؟ یہ دیکھیے جذباتی، یا زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، یا ادراکی یا حرکی مہارت۔ تو یہ جو آزما رہے ہیں سرگرمیوں کو دائرے دیگر بنیادی شکلوں میں، یہ سرگرمیوں کو مہارتوں کو پیدا کریں گے، تو یہ حرکی مہارت میں پیدا کریں گے۔ ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، کسی دوست کو خط لکھتے وقت آموزگار کو کس پہلو پر دھیان دینا چاہیے؟ کس پہلو پر دھیان دینا چاہیے یہ بول رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے تحریر دوسروں پر واضح ہو سکے، محققات کا استعمال، یا واضح۔ یا نیکسٹ دیکھیے اگلا آپشن، ذاتی کسی خاص واضح کے بغیر، یا ایک خاص واضح ذاتی پہلو پر زور، مخففات کا استعمال، یا ذاتی باتیں نہ کرنا، یا درست واضح کا استعمال۔ تو یہ کسی دوسرے دوست کو خط لکھنا، یہ کہلائے گا ایک آموزگار کو دھیان دینی چاہیے لکھتے وقت کہ ایک خاص واضح ذاتی پہلو پر زور، مخففات کا استعمال کریں،
इसी लिए शी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज़ुबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता। इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका है। एक तरीका क्या हो सकता है ये बोल रहे हैं। तो देखिए, क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सकें। तो ज़ुबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त का तलफ़्फ़ुज़ एतमाद नहीं है। जब वो बोल रहे हैं एक क्लास में तो उसको बोलते वक्त एक तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता। इस मुश्किल में पर काबू पाने के लिए बच्चे को क्लासरूम में खेल जैसी सरगर्मी दें, मशक़ें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से ज़्यादा बातें कर सकें। क्लास में जितना ज़्यादा हम जोलियों के साथ अपने सरगर्मियों के साथ वो बातें करेंगे तो उनकी झिझक भी ख़त्म होगी और तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद भी आएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग। मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। तलबा इस गीत को पढ़कर यह मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है। फिर वह गीत को सुनकर अंदाज़ा करेंगे कि वह दुरुस्त है या नहीं। तो यह इत्तला की सरगर्मी है। कौन से इत्तला की सरगर्मी है ये देखिए आप। तशहीह है या फ़र्क है या मुंतकली है या तबादला है। तो मैं आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। तलबा इस गीत को पढ़कर मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है। यानी एक गीत है, एक नज़्म हम देते हैं बच्चों को बतौर सबक में इस्तेमाल करने के लिए, तो उस जगह पे डॉट डॉट दे रहे हैं कुछ जगहों पे कि खाली जगहों को बच्चे किस मालूमात किसके ज़रिए कैसे मालूमात करके इसे भर सकता है। तो भरा जा सकता है वह गीत सुनकर अंदाज़ा करेंगे या नहीं। इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे ये गीत तो पढ़े हैं सुने हैं लेकिन उसमें अंदाज़ा आया है कि नहीं आया है, किस जगह पे क्या भराया जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए ये खाली जगहों को भरने के लिए ये दुरुस्त है या नहीं, तो इसमें क्या होगा फ़र्क का क्या फ़र्क अंदाज उनको मिलेगा या नहीं, बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चे कोई ज़ुबान दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है वह क्या हो सकता है। यानी एक उम्र के बच्चे हैं, एक छोटे हैं, एक समझिए 25 पार हैं। तो जितने छोटे बच्चे में एक अंदाज़ा रहेगा वो सीखने की कोशिश करेंगे, जल्द सीख जाएंगे। उतने ये 25 साल से ऊपर या 25 साल के लगभग के बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चे में सबसे ज़्यादा आसानी रहते हैं सबक सीखने का, आसानी से वो सीख जाते हैं। कोई भी टॉपिक हो या किसी भी लफ्ज़ को आप सिखाइए तो जल्दी सीख जाएंगे। तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि किस उम्र का मरहला जिसमें बच्चे को ज़ुबान दीगर मराहिल के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से सीख सकता है वह हो सकता है 8 साल की उम्र से पहले या 8 साल के बाद या 10 साल के उम्र से पहले या 13 साल के बाद। तो ये पहले ही बताएं कि एक छोटे बच्चे जैसे हो यानी 6 साल से बड़ा हो और 8 साल से नीचे का जितना ज़्यादा हो सके वो सीखने की कोशिश करेंगे और जल्द सीख पाएंगे। तो 8 साल के उम्र से पहले का बच्चा, ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है मीडिया की निशानदेही कीजिए। मवाद ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती हैं। किस तरह से होती हैं मालूमात हासिल ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक या बराह रास्त अमली काम या मुज़ाहिरात। तो देखिए मीडिया जो है मीडिया के ज़रिए निशानदेही कीजिएगा, मवाद ज़्यादा लागत नहीं बढ़ती
बढ़ती और तलबा को ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए। अभी के दौर में इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए मवाद की ज़्यादा लागत नहीं बढ़ती और बच्चे ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल कर पाते हैं। तो इसका हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कई ज़ुबानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़ुबान की तदरीस से होता है। किसी एक ज़ुबान की तदरीस से क्या होता है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए यकसा ज़ुबानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज़ी तर हो जाता है। तेज़ तर हो जाता है। 2 ऑप्शन सिखाई जाने वाली ज़ुबान में बातचीत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़ुबान बोलने से बाज रखने की सरगर्मी कोशिश की जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपस में बातचीत न कर पाने के सबब का क्लास गैर दिलचस्प हो जाता है। यह तलफ़्फ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है जिससे सिखाई जाने वाली ज़ुबान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। तो ये सही है। तलफ़्फ़ुज़ और लहजे जो है कई ज़ुबान यानी कई ज़ुबान का बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़ुबान की तदरीस से होता है। जैसे तलफ़्फ़ुज़ लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है। एक से ज़्यादा ज़ुबान हो, जैसे कोई बच्चा एक ज़ुबान सीखे हुआ है और दूसरा दूसरी ज़ुबान बोल रहा है तो उससे उसको मौका मिलता है। बातचीत उनसे जितना करेंगे तो उनके ज़रिए से वो दूसरी ज़ुबान भी सीख पाएंगे। तो इसीलिए मौका मिलता है जिससे सिखाई जाने वाली ज़ुबान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ुबान की मुंतक़ली इस बात पर असर अंदाज होती है कि कोई आमोज़गार किसी शानवी गैर मुल्की ज़ुबान पर कितनी महारत हासिल करता है। यह सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद ये गैर मुल्की शानवी ज़ुबान यानी दूसरी ज़ुबान के मुंतक़ली पर असर अंदाज होती हैं कि आमोज़गार किसी शानवी गैर मुल्की ज़ुबान पर कितनी महारतें हासिल करता है। तो ये देखिए तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप और सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे सकें। अगला ऑप्शन देखिए कोई और ज़ुबान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से तशख़ीसी जांच करें यानी अलग अलग से उनका जांच करें। तो ये तो है नहीं। क्लास में तब्दीलीज़ मुश्किल तर तहरीरों को पढ़ने जाने की शदीद मश्क कराएं। मश्क कराना एक नेगेटिव है तो ये होगा नहीं। ज़ुबान 2 सीखने की ठोस इदारगी की बुनियाद फराहम करने के लिए ज़ुबान 1 की आमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखे के मशक़ें कराएं यानी सीखने की उसको मशक़ें कराएं। तो ज़ुबान 2 की ठोस इदारगी की बुनियाद पर अगर आप एक ज़ुबान अमूमन सीखे हुए हैं तो दूसरी ज़ुबान सीखने में आपको आसानी पैदा होगी। इसीलिए ये बिल्कुल सही है। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज़ुबान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तलबा उसको सलाहियतों में फ़र्क समझें। तो देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है। तफवीज़ किरदा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करें।
तो ऐसा तो नहीं है। उस्ताद से मुलाकात करने के लिए वालिदैन में इसमें क्या है रोल? छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने का यानी मौका मिले, समाजी राब्तों की महारतें बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके। ये बिल्कुल सही है कि छोटे छोटे क्लास में प्रोजेक्ट अंजाम दे यानी छोटे छोटे काम को कराएं और आपस में बातचीत करने का हमजोलियों के साथ उन्हें मौका दे। जितना ज़्यादा मौका मिलेगा उतना बेहतर से वो सीख पाएंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कमतर सतह के या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत में उस्ताद उन्हें क्या करेंगे? तो देखिए, दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करेंगे या पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीर तजवीज़ करें या तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। तो दरसी किताब के लिए बिल्कुल ये हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं कि तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल को हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई गैर मुल्की ज़ुबान सीखने वाले तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ों के सबब इस ज़ुबान की किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है। इस दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है। किस तरह से काबू पाया जा सकता है ये बोल रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन 1 बुलंद आवाज़ में पढ़ कर के इमला और तलफ़्फ़ुज़ के दरमियान ताल्लुक़ को समझा जा सके। ऑप्शन 2 देखिए, लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हुए या उस्ताद के तलफ़्फ़ुज़ की नकल करके या मुश्किल लफ्ज़ को मश्क के तौर पर अपने आप पढ़कर। तो ये कह रहे हैं, सवाल देखिए, कोई गैर मुल्की ज़ुबान सीखने के लिए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हैं तो दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है। तो इसीलिए बी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ज़ुबान की तदरीस के क्लास में ख़ुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्सों के एहसास का फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसलिए कि किस लिए ज़रूरी है इन तलबा की मख़सूस ज़रूरतों के पेश नज़र सलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर किया जाता है यानी जाएगा। ऑप्शन 2 देखिए, इन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वह स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल न सकें। ऑप्शन 3 देखिए, मुख्तलिफ़ नौइयतों की दरसी किताबें फ़राहम की जाए। 4 देखिए, मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौका फ़राहम किया जाए। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ज़ुबान सिखाने की रवायती क्लास उस्ताद मरकूज़ क्लास हुई है, जबकि मौजूदा ज़माने की क्लास तालिबे इल्म मरकूज़ होती हैं। रवायती क्लास की एक ख़ुसूसियत है। क्या ख़ुसूसियत है ये देखिए आप लोग। तलबा ज़ुबान सीखने की ख़ुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें इंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद देता है। तो ये बिल्कुल सही है। ज़ुबान सिखाने की रवायती क्लास उस्ताद की मरकूज़ क्लास होती हैं, इसीलिए ज़ुबान सिखाने की रवायती में ख़ुसूसियत तलबा ज़ुबान सीखने की ख़ुसूसी तौर पर
तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में उनका मदद करते हैं। एक बच्चे हैं वो ज़ुबान सीखने की ख़ुसूसी तौर पर तैयारी सरगर्मियों में शिरकत करते हैं, तो उनमें जब तक उस्ताद उनकी मदद नहीं करेंगे तो सही ढंग से वो नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए उर्दू पेडागोजी के सवालात थे और सारे सवालात आपको पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे इसी टाइप से। ये कुल 15 सवालात थे उर्दू पेडागोजी के, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराएंगे। थोड़ा और करीब आने दीजिए एग्ज़ाम को तो कराएंगे। जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं सारे को सॉल्व कराया जाएगा। अभी देखिए उसमें पैराग्राफ तो आप लोगों को समझ में आएगा। 15 नंबर का पैराग्राफ मिलेगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम रहेगा। 15 में 15 आना चाहिए जब आपकी तैयारी बिल्कुल सेफ है। अगर पैराग्राफ में 15 लाते हैं तो पेडागोजी में अगर 15 में 10 भी लाइएगा तो 25 नंबर मिलेगा, और आपको 15 आएगा 12 आएगा, जितना भी आएगा उनके हिसाब से आपको नंबर हासिल होंगे। आप लोगों के लिए बेहतर है लैंग्वेज ही मज़बूत होनी चाहिए। लैंग्वेज मज़बूत रहेगी तो आप लोग सीटेड आराम से निकाल लीजिएगा, निकाल सकते हैं। इसीलिए लैंग्वेज मज़बूत से तैयारी कीजिए लैंग्वेज की, और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, इनसे जुड़े और आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लाइन बाय लाइन क्लास मिल रहा है, क्लास दिया जा रहा है, तो आप लोग लाइन बाय लाइन देखते रहिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।